is on linear independence of vectors. But before discussing linear independence, just review about the linear combination of vectors and spanning. In linear combination, we know if a vector W is given, then the vectors suppose k1 v1, k2 v2, and k3 v3, such type of vectors were given. But for linear combination, all these four vectors are given. W is given, v1, v2 and v3 are given in case of linear combination of vectors. And in spanning, this one will be the supposed vector, and this supposed vector is from S3 or polynomials of degree 3 or matrices. In linear combination, we find values of these unknowns k1, k2 and k3, whereas in spanning, as the right hand side is a1, a2, a3, and we just check about the consistency of the system. So in case of spanning, we check whether the system is consistent or inconsistent. The difference between these two topics is that in linear combination we find value of k's and then check whether left and right hand side are equal, whereas in spanning we check whether the system is consistent or not. Now we will discuss definition of linear independence, and the definition says if this is set of vectors and this linear combination is equal to 0 vector, it means that this system will convert into system of into homogeneous system and we know how to solve the homogeneous system of equations. We solved that in exercise 1.2. If value of all these scalars is equal to 0 then we say that the S is linearly independent set. Again, if value of variables equals to 0 then this means that S is linearly independent set. अगर इसी को हम होमोजीनियस सिस्टम के साथ देखें तो इसका मतलब क्या होता था कि अगर सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है तो फिर उस सिस्टम का हम सोल्यूशन कहते थे कि वो सोल्यूशन उसका ट्रिवियल है, और अगर सिस्टम के ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होते थे तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे जिसको हम बोलते थे कि वो नॉन ट्रिवियल है. सो इन केस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंस, इफ the vectors have this solution then the set of vector is linearly independent. Other than this solution means that S is linearly dependent. For non-trivial solution, you know, suppose x1 is written as 2 plus xt. It means x2 depends, x1 depends upon x2, and this situation is of non-trivial solution. So in case of vectors, if this situation arises, that is the situation of non-trivial case, then this one will be the situation of linearly dependent set. दोबारा से अगर ट्रिवियल की सिचुएशन बन जाएगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होंगे, और अगर नॉन ट्रिवियल की सिचुएशन बनेगी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बन जाएंगे. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हमें पता है वो नॉन ट्रिवियल था, इसमें हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे उनको. और नॉन ट्रिवियल की बाय इंस्पेक्शन क्या था कि इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वेशंस देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और इफ वन इक्वेशन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर देन वी हैव द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि इसके इनफाइनाइट नहीं बल्कि यूनिक सोल्यूशन हो गया, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या है कि सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होगी, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा. स्टार्ट बिल्कुल जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन को कर रहे हैं, ये थ्योरम हमारी हेल्प करेगा बाय इंस्पेक्शन के लिए. आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ वेक्टर्स को, और जो एन है, एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास के डायमेंशन क्या
अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स डायमेंशन से ज़्यादा होंगे तो जो सेट टेस्ट होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इस एक्सरसाइज में अगर हम चलें तो इसमें पहला क्वेश्चन है बाय इंस्पेक्शन बताना है कि ये क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है। गिवन है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, हमने रीज़न बताना है। अब यहाँ पे देखें अगर कि u2 जो है u1 का स्केलर मल्टीपल है, तो जैसे हम ट्रिवियल की बात कर रहे थे नॉन ट्रिवियल की, कि अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो वो नॉन ट्रिवियल होगा। तो इस केस में क्योंकि ये वेक्टर u2 जो है u1 का स्केलर मल्टीपल है तो इसलिए ये लीनियर डिपेंडेंट है। अगर आप बी पार्ट में जाएंगे उसमें वेक्टर्स कितने गिवन है, u1 u2 and u3, 3 vectors are given and what is the dimension, dimension is 2. We are discussing about R2. As number of vectors R is greater than the dimension, that's why this S is linearly dependent. C and D part are same, D is same as A. Now for question number 2, which of the following are linearly dependent? u1, u2 and u3 are given. We put this linear combination of vectors equals to 0 vector. अब यहाँ पे फिर ट्रिपलेट है तो 0 वेक्टर किस तरह लिखा जाएगा, ट्रिपलेट ऑफ जीरोस की फॉर्म पे। अब आपने उसी तरह k1s वगैरह बना के फिर 3k1 5k2 और k3 ऐड हो गए तो ये एक ट्रिपलेट फिर बन गया। यहाँ पे देखें इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 1 2 और 3। सो दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 0, this component will be equal to 0 and this component will be equal to 0. Now we have 3 equations, all 3 are equal to 0, so this is homogeneous system. अब homogeneous system के लिए हमने इसमें चेक करना है कि ये हमें ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है या नॉन ट्रिवियल। अगर ट्रिवियल होगा तो वो बताएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर नॉन ट्रिवियल होगा तो वो बताएगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट टेस्ट है, यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। एज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन जो होगा सारे वेरिएबल्स इक्वल्स टू 0 होंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इनमें से कौन से लीनियरली डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने बता दी कि वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। दोबारा कि हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में करते थे, यहाँ पे इक्वल टू 0 वेक्टर पुट करेंगे, उसके बाद इक्वेशंस बन जाएंगी, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट टेस्ट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। P2 मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। P1 P2 P3 तीन वेक्टर्स गिवन है, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने इक्वल टू 0 वेक्टर पुट किया। अब क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं सो आवर जीरो पॉलिनोमियल will be written like this as we used it in the question of subspace. जीरो वेक्टर इस फॉर्म पे आ गया। इस जीरो वेक्टर को अब हम जब कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट देन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो वी गेट दीज इक्वेशंस। इसका जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर क्वेश्चन में वर्ड इंडिपेंडेंट का यूज़ होगा तो फिर हम उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट की फॉर्म पे बता देंगे।